So hey you guys, welcome back to another video, and you are watching another vlog of a bank aspirant who is managing her college exams while preparing for bank. So let's just start this video. So my day starts at 8 a.m. with a glass of Nana Shake, and today I was watching some YouTube videos of laptop in the morning itself. So I was watching some reviews of laptop that are foldable and has touch screen because I need to buy one laptop in January. The one I am using currently is of Dell, and it's been 6 months of us together, and I think कि ये मेरे को धोखा दे रहा है, तो I need to buy one in January. Also, I have planned to start doing current affairs from January. So this is another reason why I want my laptop to be foldable and has touch screen. So yeah. So after this I made to-do list and then I revised TCS. After that I had my brunch. Okay, that was too early for the brunch because I had my brunch at 10 a.m. So from 10 to 12:30 I started studying my semester subject because as you all know my exams are going on and I need to study for that also. So let me tell you the story behind my preparation. So covering syllabus and completing foundation classes takes a lot of time and efforts. And when I started my preparation and started covering the foundation classes, I was having 2 months of gap after completion of my second year. So I thought why not start preparing for bank. I always wanted to start my preparation from the first year of college, but I wasn't able to because I thought I have plenty of time. So I didn't start in my first year of college. But after second year, when I get 2 months of gap, I thought to utilize it, and that time I got clicked that I should prepare for bank. So this is how I started preparing for bank, and now I am able to manage both just because of that 2 month of gap. Now also I feel that that was the best decision I took. मैं पढ़ ही रही होती हूँ तो मेरे को मेरी बुक में ये ऐसी मक्खी सी दिखती है एंड मुझे नहीं पता ये कब से इस बुक में दबी हुई है, तो मेरे को आज इसको मुक्ति देनी पड़ी, तो फिर मैंने इसको मुक्ति दी। और उसके बाद फिर मेरा 2 यूनिट मैंने कंप्लीट किए थे आज अपने कॉलेज के एग्ज़ाम्स के, मतलब कॉलेज के सब्जेक्ट्स के। तो उसी की खुशी में फिर मैं अपना एक केक लेके आई थी और ये वाले केक मेरे को काफ़ी पसंद है, सो आई रिवॉर्ड माई सेल्फ विद दिस केक। एंड उसके बाद फिर मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था एंड देन आई स्टार्टेड विद माई बैंक प्रिपरेशन. So I thought to take a nap, but that nap converted into a 2 hour of sleep. And after waking up, I was regretting a lot that why I went for a nap. So ये सर्दियों में क्या होता है ना, जो दोपहर की नींद होती है ना, इन पे कभी 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 भी भरोसा मत करना बिकॉज ये हमेशा धोखा देती है. So after regretting, I thought, is there any option? No. So I started with editorial and. There is one thing about mock. Do tell me if this happens with you or not. What happens with me is कि मेरा कोई भी सेक्शन, मतलब आई मीन कि मेरे सारे सेक्शन कभी भी सही नहीं जाते हैं. या तो किसी मॉक में मेरा इंग्लिश डूब रहा होता है, किसी मॉक में मेरा रीजनिंग डूब रहा होता है, किसी में मेरा क्वांट्स डूब रहा होता है. मतलब और ऐसा भी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन ख़राब जा रहा है कि मैं ये बोलूँ कि मेरा ये वीक है या फिर वो वीक है, क्योंकि इससे तो मुझे लग रहा है कि मेरा सब कुछ ही वीक है. क्योंकि क्या होता है कि किसी मॉक में मैं अपना इंग्लिश ख़राब कर देती हूँ नेगेटिव लगवा के. रीजनिंग में कभी कभी क्या होता है, मैं कोई कोई गलत पजल चूज़ कर लेती हूँ जिसकी वजह से फिर मैं उसी में फंस जाती हूँ और बाकी के क्वेश्चन फिर अटैम्प्ट नहीं हो पाते हैं. क्वांट्स में मैं कोई ऐसी डीआई पकड़ लेती हूँ, कोई ऐसा अर्थमेटिक का क्वेश्चन पकड़ लेती हूँ जो मेरे से उस मोमेंट पर सॉल्व नहीं हो रहा होता है एंड बाद में फिर मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है और फिर उस पैनिक के चक्कर में मैं पूरा मॉक ख़राब कर देती हूँ. तो डू टेल मी कि ये तुम्हारे साथ भी होता है या नहीं होता है. So after that I started with my speed math session, and let me tell you about this today. I am attending speed math from past 1.5 or 2 months regularly, and the tricks that I have learned in this session is really amazing. And वो जो tricks है वो मैं mock में भी use कर पा रही हूँ, and that was really amazing क्योंकि उस टाइम पे मैं ये देखती हूँ कि हाँ कि कितनी easily मैं वो calculation कर पा रही हूँ just because of these tricks. तो वो ट्रिक्स ऐसा भी कुछ नहीं है, बट हाँ वो ये नंबर्स को देखने का तरीका बदल देता है. जैसे कि एक परसेंटेज निकालने वाला ट्रिक था कि पहले 10% निकाल लो एंड देन फिर उसका कैलकुलेट करो. तो डेट वॉज रियली अमेजिंग क्योंकि ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बट इट्स जस्ट कि देखने का तरीका बदल गया एंड यू कैन फाइंड इट ईजीली.
So I will recommend you people also, if you are lacking in speeds then you should watch it. स्टार्टिंग के डेज़ में लगेगा कि ये क्या ही बच्चों जैसी चीज़ें हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, बट लेटर यू विल रियलाइज़ कि ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। माना ले चाहे को, आखा ले खोजे को, जीवन को प्यारो मन से हो, कसरी बाचोला, यो जीवन काटोला, जीवन को प्यारो अर्थ हो। एंड देन आई स्टार्टेड विद द मॉक क्वेश्चन जो कि अनअटेम्प्ट थे मेरे कल और परसों वाले मॉक में। तो मैंने ऑलिव बोर्ड का और टेक्स्ट बुक का दिया था। तो ऑलिव बोर्ड वाले में मेरा उसका क्वांट्स वाला सेक्शन रह गया था जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, मतलब उसके अनअटेम्प्ट वाले क्वेश्चन दोबारा से नहीं किए थे। और टेक्स्ट बुक में रीजनिंग वाला सेक्शन था आई गेस, हाँ, तो वो करने थे। सो जो टेक्स्ट बुक वाला था उसमें मेरे 62 या 61 समथिंग स्कोर था। मैंने उस पर वीडियो डाली है तो यू कैन वॉच दैट। और जो ऑलिव बोर्ड वाला था उसका तो बहुत ही गंदा स्कोर था, लाइक 33 पॉइंट समथिंग कुछ था। टुडे आई वॉज नॉट गिविंग एनी फुल मॉक बिकॉज आई ऑलरेडी वेस्टेड 2 आवर्स इन स्लीप। और अगर मैं फुल मॉक दूंगी तो फिर वही होगा कि मेरे को कॉलेज के एग्ज़ाम्स के लिए कम टाइम मिलेगा। सो आई थॉट कि आज मैं मिनी मॉक देती हूँ। तो आई गेव दिस मिनी मॉक फ्रॉम टेक्स्ट बुक जो कि रीजनिंग का था। एंड इसमें 30 क्वेश्चन थे जिसमें से मैंने 27 अटैम्प्ट किया था और काफ़ी क्वेश्चन गलत भी हो गए थे, तो मेरे 20.75 मार्क्स बने थे। एंड देन फिर मैंने थोड़ा ब्रेक लिया एंड फिर कॉलेज का पढ़ा, खाना खाया एंड फिर मेडिसिन ली। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ डू सब्सक्राइब।